ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، آصف علی زرداری نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نومنتخب صدر سے حلف لیا۔ ملک کے 14ویں صدر آصف علی زرداری نے انگریزی زبان میں حلف اٹھایا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، سبکدوش صدر عارف الوی، مسلح افواج کے سربراہان سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ نواز شریف، بلاول بھٹو، آصفہ اور بختاور بھی تقریب میں موجود تھیں۔ حلف اٹھاتے ہی ایوان صدر ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آصف زرداری نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نو منتخب صدر سے حلف لیا۔ As President of Pakistan, I will discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions. ملک کے 14ویں صدر آصف علی زرداری نے انگریزی زبان میں حلف اٹھایا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، سبکدوش صدر عارف الوی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی شریک ہوئے۔ چاروں صوبوں کے گورنرز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صدر مملکت کی حلف برداری تقریب میں نہیں آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختاور بھٹو، فریال تالپور، عذرا پیچوہو، قائد نون لیگ میاں نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، اسحاق ڈار، محسن نقوی، فاروق ایچ نائک، خورشید شاہ اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ زرداری کی جانب سے بطور صدر حلف اٹھاتے ہی ایوان صدر جی اے بھٹو ایک زرداری سب پر بھاری کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان کھپے نعرے کے بانی آصف علی زرداری نے 11 سال جیل میں گزارے۔ شہید بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد قسمت تو چمکی، لیکن طویل اسیری بھی مقدر بنی۔ مسکراہٹ، عاجزی اور دوست بنانے کا فن آصف زرداری کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ بھی انہیں زیرک سیاستدان کہتے ہیں۔ ان کو مضبوط کر دیا۔ سیاسی مقدموں میں زندگی کے 11 سال اسیری میں گزارے اور جب باہر آیا تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ پاکستان کھپے۔ آصف زرداری پہلے سویلین ہیں جو دوسری بار صدر مملکت منتخب ہوئے۔ The votes acquired by Asif Ali Zardari 255۔ 26 جولائی 1955 میں حاکم علی زرداری کے گھر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول، سینٹ پیٹرکس اسکول اور کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کی۔ آصف زرداری کی 1987 میں شہید ذوالفقار بھٹو کی بیٹی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی۔ اس شادی کے بعد آصف علی زرداری کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ 1990 میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر ماحولیات اور سرمایہ کاری کے وزیر بنے۔ 1997 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، لیکن کبھی ایوان تو کبھی جیل میں رہے۔ آصف زرداری کی اسیری کے دوران پاکستان میں 2 حکومتیں تبدیل ہوئیں، پہلے نواز شریف اور اس کے بعد جنرل مشرف کا مارشل لا۔ آصف زرداری 2004 تک سلاخوں کے پیچھے رہے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں 27 دسمبر 2007 کو خودکش حملے میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف زرداری دبئی سے واپس لوٹے۔ بیٹے بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس میں پاکستان کھپے کا نعرہ بلند کیا، جو بعد میں پیپلز پارٹی اور خود آصف علی زرداری کی سیاست کا استعارہ بن گیا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد 2008 میں الیکشن جیت کر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی۔ آصف علی زرداری صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آصف زرداری 2008 سے 2013 تک پہلے سویلین صدر تھے جنہوں نے اپنی مدت پوری کی۔ انہوں نے اسمبلی کی معطلی کا اختیار پارلیمان کو واپس کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم سے صوبائی خود مختاری بحال کی۔ صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا۔ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مار کے پارلیمنٹ کو
मजबूत कर दिया। 2019 में तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आसिफ जरदारी ने पीडीएम हुकूमत के कयाम में अहम किरदार अदा किया, ताहम कोई ओहदा न लिया। आसिफ जरदारी को मफाहमत का बादशाह और सियासी जादूगर भी कहा जाता है। मुस्कुराहट, आजिजी और दोस्त बनाने का फन आसिफ जरदारी पर खत्म है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग भी उन्हें ज़ीर सियासतदान कहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे दी। आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह तबादले को बरकरार रखा है। सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुशावरत के बाद नाम तय कर लिए। ज़राए का कहना है कि इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बनाया जाएगा। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी और तरक्यात का वज़ीर बनाया जाएगा। अता तारड़ को इत्तलात और नशरियात, मुस्तदिक मलिक को तवानाई की वजारत दी जाएगी। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी मुशीर ख़ारजा और तारिक फातमी मुआवन खुसूसी बराए ख़ारजा उमूर होंगे। मोहम्मद औरंगजेब मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआवन खुसूसी बराए खजाना होंगी। उधर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज, इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन, मुतअद्दिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस ने इचरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ़ खोसा को हिरासत में लिया। मियां महमूद रशीद के बेटे महमूदुल हसन और रुकन असम्बली हारून अकबर को भी पकड़ लिया। जीपीओ चौक पर जमा होने वाले कारकुनान पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं और 25 अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनान को भी पकड़ लिया गया। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के दामाद और नवासे जाहिद हाशमी और मखदूम कासिम हाशमी को भी धर लिया गया। गुजरांवाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद और मुतअद्दिद कारकुनान को पुलिस ने तहवील में ले लिया। विहाड़ी में पुलिस ने अवामी मरकज के बाहर से कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ा। इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची, जहां से कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गए। पेशावर के कबूतर चौक पर मुबैना धांधली के खिलाफ पंडाल सजा। हैदराबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। वालिद एहतजाज की क़यादत करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते से पुलिस उन्हें गाड़ी से उतार कर ले गई। लतीफ खोसा के बेटे शहबाज खोसा एडवोकेट की ARY न्यूज से गुफ्तगू, बोले अभी तक ये भी नहीं मालूम कि गिरफ्तारी के बाद वालिद को किस थाने में रखा गया है। प्रोटेस्ट जो था आज पीटीआई का, जिसको वो एज अ एमएनए एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाहौर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ अटेंड करने जा रहे थे, इनको गाड़ी से उतार कर बाकी लोगों के साथ अरेस्ट करके ले गए। ढूंढ ही रहे हैं हम कि किधर लेकर गए हैं, अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ लेकर। यानी आपको ये भी मालूम नहीं है कि किस थाने उन्हें मुंतकिल किया गया है? जी नहीं, ये नहीं मालूम। 2 गालिबन SHOs थे थाना कैंट, साथ उनके SP भी शायद मौजूद थे। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा की गिरफ्तारी की CCTV सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है पुलिस एहलकार लतीफ खोसा को लेकर आए और सफेद गाड़ी में बिठाया गया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा, जिनको गिरफ्तार किया गया है अब से कुछ देर पहले, उसकी फुटेज मंजर आम पर आई है और इस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको लेकर आए हैं और सफेद गाड़ी में बिठाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में पीटीआई के एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, शफाफ ट्रायल चलाकर बानी पीटीआई को जल्द रिहा किया जाए, हमारी सीटें हमें वापस की जाएं। तरीके से डिमांड करता हूं, इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनसे गुजारिश करता हूं, जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा अगला मुतालबा ये है, फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट
अवाम को वापस दिया जाए। जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे और आइन को तोड़े। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पेशावर में मुजाहिरा रहनुमा PTI फैसल जावेद ने मुतालबा किया बानी PTI, उनकी अहलिया और तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। आम इंतखाबात में अवाम के दिए गए मैंडेट को बहाल किया जाए। मुतालबा करते हैं इमरान खान की रिहाई का, उनकी अहलिया बुशरा भाभी की रिहाई का, पाकिस्तान में जितने भी हमारे मजलूम बेगुनाह वर्कर्स कैद हैं उन सब की रिहाई का। दूसरा मुतालबा, इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है, अवाम के उस मैंडेट को बहाल किया जाए। इंतखाबात में मुबैना धांधली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, गुरु मंदिर से मज़ार कायद तक रैली भी निकाली। मजीद जानते हैं फैजुल्ला खान से। बताइए फैजुल्ला। तहरीक इंसाफ के तहत आज कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। कोरंगी में, मलीर में, मिलीनियम मॉल पे, लियारी में और गुरु मंदिर से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान, हलीम आदिल शेख, जमाल सिद्दीकी, राजा अजहर और दीगर ने शिरकत की। रैली में खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल थी। शुरका का मुतालबा था कि बानी PTI को भी रिहा किया जाए। अपने मुतालबात के हुसूल के लिए एहतजाज जारी रखेंगे, जबकि रमज़ान के बाद कराची में एक बड़े जलसे का भी ऐलान किया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी शरीक होगी और उससे खिताब करेगी। जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा में इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी है। नसीरात कैंप पर बमबारी में 15 खवातीन और बच्चे शहीद हो गए। दीर अल बलाह में बमबारी में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। एक तरफ बमबारी तो दूसरी जानिब भूख से फ़लस्तीनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। शिमाली गजा में भूख से 9 मौलूद और खातून जान से गईं। खुराक की किल्लत के बायस मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 25 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक रमज़ान से पहले जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है रमज़ान से पहले इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। जमात इस्लामी ने गजा के लिए 27 रमजान को मार्च का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक ने कहा जुमातुल विदा को लाखों की तादाद में अमरीकी सफारत खानों की तरफ निकलेंगे। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो हमारी मर्जी होगी, ऐवान सदर में दाखिल हो या अमरीकी सफारत खाने में। सिराजुल हक ने कहा 2 चोर खानदानों को फिर से मुसल्लत कर दिया गया है। इनके होते हुए मुल्क महफूज है ना मुल्क का खजाना। 27वीं जुमातुल विदा को हमने मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने की तरफ दोबारा आना है और मिलियन लोगों को साथ लाएंगे। 2 खानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं। इनके होते हुए न पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है, न पाकिस्तान का जोग्राफिया महफूज है, न पाकिस्तान का खजाना महफूज है। तूफानी बारिशों ने जहां गवादर शहर में तबाही मचा दी है, वहीं साहिली शहर पशकान को भी तहस नहस कर दिया है। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श। में जो 13 दिनों तक जो सैलाबी सूरत हाल था, उनमें से जहां ग्वादर सिटी को नुकसान पहुंचा है, वहां ग्वादर के जो साहिली बेल्ट है पिशकान और जीवनी, यहाँ भी सख्त मुतासर हुआ है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पिशकान का एक यूसी है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ 2 से 3 फुट पानी ना सिर्फ खड़ा है बल्कि इसके जो इर्द गिर्द जितने भी मकानात हैं वो भी सख्त मुतासर हुए हैं। तकरीबन 8 दिन तक पिशकान का ज़मीनी राब्ता ग्वादर से डिस्कनेक्ट था। 8 दिन के बाद बहाल कर दिया गया। पिशकान में मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। यहाँ 800 से ज्यादा घरें मुतासर हुई हैं। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। ये वही अपनी मर्जी के दाम चलाते हैं, गरीब को कोई रिलीफ नहीं है। रमजान से पहले ही ऐसा है, अभी रमजान आ गया तो ज्यादा होता है। तो टमाटर 80-60 बिकता था, वो ना रमजान की वजह से 240 रुपए किलो हो गया। एक चीज जो है ना 100 रुपए की थी वो 500 की हो गई। रमजानुल मुबारक से पहले ही मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज़ इफ्तार कैसे करेंगे अवाम परेशान। कराची में प्याज की कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक 500 और लहसुन 650 में फरोख्त हो रहा है। हरी मिर्च 350 रुपए किलो मिल रही है। भिंडियों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। ये वही अपने मर्जी के दाम चलाते हैं। गोश्त पे भी रेट आज ही बढ़ा दिए, तो इस तरह गरीब को कोई रिलीफ नहीं है। रमजान से पहले ही ऐसा है, अभी रमजान आ गया तो ज्यादा होता है। हम खाए नहीं खाए उसको फर्क नहीं पड़ता है ना। लाहौर में टमाटरों ने डबल सेंचुरी बना ली। लीमू भी 80 रुपए महंगे होकर 200 रुपए किलो हो गए।
सेंट लॉरेंस गर्ल्स हाई स्कूल की साइंसी नुमाइश 2024 तालिबात के प्रोजेक्ट तवज्जो का मरकज़ बन गए। साइंस के अमली मैदान में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से तालिबात की मुआवनत की जाए तो रोज़गार के वसी मौक़े मैसर आ सकते हैं। अनवर खान की रिपोर्ट मिलेगी। तालिबात और असातिज़ा की मुश्तरका काविशों से बनाए गए प्रोजेक्ट इस एतबार से अहमियत के हामिल थे कि इनकी तख्लीकी सलाहियतें नुमाया तौर पर नजर आईं। ये जब अमली मैदान में लाएंगी तो ये मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद होगा और हमारी बच्चियाँ कभी भी साइंस में पीछे नहीं रहेंगी। नुमाइश में कंप्यूटर, रियाजी, साइंसी मौज़ूआत के अलावा सोशल स्टडीज के अहाता भी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये टरबाइन होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टोर हाउस होता है जिसमें बिजली जो है स्टोर करी जाती है। हमने वोल्केनो बनाया है जिसके अंदर शैम्पू और पानी का मिक्सचर है। NaCl सोल्यूशन में और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में बल्ब ग्लो करेगा एंड शुगर सोल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाली तालिबात को वसाइल की फराहमी के साथ स्कॉलरशिप के मौके फराहम किए जाएं तो प्रोजेक्ट अमली जिंदगी में तालिब इल्मों के लिए अहम साबित होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।